I'm gonna make sure that when you leave this video, you're gonna have literally all the information. I'm gonna be super sorted, and I'm gonna make sure that happens. Hey besties, welcome back to my channel. So it's been a really long time since I've done like a proper sit down video. I think my last sit down video was board exam tips and mistakes to avoid in your board exams. So if you're a board student and you're here, which obviously I think you are, do watch that video because I literally covered every mistake of mine, and I'm like literally so open and frank to you guys. Like I tell you every single mistake I make, I tell you all the stupidities I do so that you don't make those mistakes. So I really wanted to watch that video. It's super short and I don't think it's gonna like take a lot of your time, and it's also super helpful because I've been very honest in that video. So do give it a watch. And in today's video, which is why you're here, I am gonna talk about how I got 100 on 100 in physical education, and how you can get 100 on 100 in physical education too. Also, I want you guys to tell me if you want me to make a video on how I got 98%. Like I got a 97.6 in my 12th standard board exam, which is like almost a 98. So like you guys can drop comments that you want me to answer regarding like 12th standard, 11th board here, and I'll make a video on it. Let me get to the point. In this video, I'm gonna cover all the topics, like why I took physical education, what notes did I use, how much hours did I study, when I started studying and all of that. And so first of all, the question why I took physical education, I knew my weak points, or like I knew what subjects I could lose marks in, and that subject for me was accounts. Like मुझे पता था no matter how hard I study, no matter how good I think I am in accounts, I am gonna make mistakes, I am gonna lose marks, I have performance anxiety, तो मेरे को पता था ये होना ही है, which is why I took physical education. I got a 93 in accounts, which is not bad, which is definitely not bad, but but that was my lowest score in my exam, and because I had 6 subjects, my best 5 calculated up to 97.6%, which definitely gave me a boost, which is why you should take physical education because it's literally a very easy subject. और मेरे सारे सीनियर्स ने मुझे बोला था कि like PE ले लो because it's super easy and it's really gonna give you the boost your percentage need. 12th standard के percentages do matter. If it can help me get a scholarship or get me something like that, I would want a good percentage. Then the second thing is that does PE give you a lot of burden? Or when I started studying PE, listen, I literally started studying PE like a week before the exam. ठीक है, स्कूल में all exams नहीं होते फिजिकल एजुकेशन के, जो मेरे नहीं हुए थे पूरे साल. मैंने बस एक ही फिजिकल एजुकेशन का पेपर दिया था स्कूल की तरफ से, और वो था प्री बोर्ड 1. प्री बोर्ड 2 में भी फिजिकल एजुकेशन का पेपर नहीं हुआ. एंड आई रिमेंबर आई हैड स्टार्टेड एट अराउंड 4 PM. मेरा नेक्स्ट पेपर था, आई स्टार्टेड अराउंड 4 PM एंड आई वाज वाचिंग ऑल द वन शॉट्स. आई वाज वाचिंग ऑल ऑफ रजत उदारा सर के वीडियोस. उस दिन मैं अराउंड 8 घंटे बैठी थी एंड आई कंप्लीटेड द एंटायर सिलेबस. मैंने वो I was not like actively studying. It was not like I was memorizing and stuff and I was like properly मैं पढ़ रही थी, but I was just writing down points in the form of like little notes. And I gave that exam. It was pretty easy. मेरे को एक idea लग गया कि ठीक है PE में क्या होता है. So giving one physical education का paper will really make you understand कि एग्जाम में क्या आ सकता है, किस पैटर्न से आ सकता है, तुम कैसे लिखोगे वो उस चीज़ को, which is very important. So I don't think you really have to study for a month and so long or something like that, क्योंकि मैं literally एक हफ्ते पहले पढ़ा था PE. एंड वॉट आई डिड वॉज दैट आई वॉज लिटरली वॉचिंग वो जाकी सौदागर सर के सारे वीडियोज़. ओके, एंड इट वॉज लिटरली सो हेल्पफुल. लाइक उनके चैनल पे ही हैड हीज नोट्स एज वेल, एंड आई वॉज ऑल्सो रेफरिंग टू लाइक अ PDF ऑफ सम स्टडी मटीरियल जो हमारे स्कूल से हमें दिया था. So it was not like I had certain notes or I had bought books. मैंने कुछ नहीं खरीदा था PE के लिए. I have not spent a single rupee of mine for buying any material for PE. मैं बस like YouTube वीडियो से पढ़ती थी, या फिर I used to like take down the notes on from रजत उरारा सर के PPTs. So अगर वो तुम्हें मिल रहा है, अगर तुम्हें फ्री का मटेरियल मिल रहा है ऑनलाइन, which is very good because these teachers are so experienced. उन्होंने पहले के पास पेपर्स कराए होते हैं, उन्होंने पहले के बैच को भी पढ़ाया होता है, तो वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है. और अगर तुम्हारे स्कूल में PE नहीं पढ़ा रहा है देन पढ़ लो उनसे. ओके, रेफर टू यूट्यूब वीडियोज़. यूट्यूब वीडियोज़ आर 100% हेल्पफुल. आई विल गिव यू 2 names. आई विल गिव यू रजत अरोरा सर, आई विल गिव यू जाकी सौदागर. इन दोनों के वीडियोज़ देख लो, इन दोनों के नोट्स रेफर करो, तुम्हारा काम हो गया. दिस इज़ लिटरली ऑल आई हैड डन. ओके, उसके अलावा आई हैड टेकन डाउन माई ओन नोट्स, इसलिए आई थिंक आई रिमेंबर्ड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैं जब एक हफ्ता रह गया था पेपर के लिए
तब आई वॉज टेकिंग डाउन नोट्स, ओके, मतलब मैं तब प्रॉपर वाले नोट्स ले रही थी, अच्छे वाले. फिर उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट I attended every single live session. I attended every single paper solving session that was going on YouTube. I did that. क्योंकि मेरे को पता था मैंने पूरे साल पी नहीं पढ़ा है. मैंने इससे पहले बस एक ही पी पेपर दिया जो काफ़ी बेसिक था. I need practice and practice is the main thing guys. क्वेश्चन इतने रिपीटेड आता है ना यूजुअली एग्जाम में. I'll tell you, मेरा पेपर फ्रॉम व्हाट आई नोटिस पास पेपर से थोड़ा बहुत डिफरेंट था. एंड फिर भी अगर मेरे 100 आ सकता है और तुम्हारा पेपर वही पैटर्न में आ रहा है जो तुम पास पेपर्स करके जा रहे हो, imagine how easy it is going to be for you and imagine how much you're going to regret if you don't do those past papers. You know, attend each and every live जो टीचर्स करा रहे होते हैं यूट्यूब पे, वो बेकार में नहीं करा रहे होते. These people are literally so experienced. Like I cannot stress more about this. Now one more thing I want to like tell you, paper presentation के हिसाब से these are the things that people tell you in YouTube videos, but मैं बता रही हूँ मैंने क्या किया था. In my BE paper, first of all, I had kept it very clean. ऐसा नहीं मैं गंदा करके आई थी, but apart from that, I drew all the yoga asanas and stick figures. जो भी क्वेश्चन पूछा था, अगर वो चीज़ मैं थ्योरी के साथ स्टिक फिगर्स के ड्राइंग में समझा सकती थी उस एग्जामिनर को, मैंने वो ड्राइंग बनाया. ठीक है. आई हैव मेड ईच एंड एवरी ड्राइंग ऑन दैट एग्जामिनेशन पेपर. आई हैव मेड बॉक्सेस, हर आंसर के मैंने बॉक्स बनाए थे. मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम था. पी का पेपर ईजी होता है, जल्दी ख़त्म हो जाता है, ज़्यादा लेंदी नहीं होता, तो तुम्हारे पास बहुत टाइम होगा. सो वॉट यू नीड टू डू इज यू नीड टू यूटिलाइज दैट टाइम लाइक आई डिड. मैंने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ के आना. एक आध क्वेश्चन था जो आई डिड नॉट हैव लॉट ऑफ आइडिया अबाउट, बट मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड मैं क्या क्या लिख सकती हूँ, वो सब मैं लेके आ गई. सो यू नीड टू रिमेंबर 3 थिंग्स फ्रॉम द पेपर प्रेजेंटेशन पॉइंट. एक तो कीप द पेपर क्लीन, ऐसे मतलब बॉक्स ड्रॉ करना, क्वेश्चंस के बीच में लाइन छोड़ना, एटलीस्ट 2-3 लाइन का डिफरेंस छोड़ो कि एग्जामिनर को समझ में तुम्हें क्या लिखा है. दीज पीपल आर चेकिंग हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स. Okay, they might be taking like 50-60 papers per day. You never know. तो तुम इनका मूड क्यों खराब करना चाहते हो अपनी गंदी राइटिंग से? इफ दे सी कि अच्छा इस बच्चे ने इतना अच्छे से ड्राइंग बनाया, इतना अच्छे से पेपर लिखा है, दे विल ऑटोमेटिकली बिकम हैप्पी बिकॉज दे प्रोबेबली हैव करेक्टेड मेनी शिट पेपर्स विद अ लॉट ऑफ शिटी हैंड राइटिंग. तो दिस इज गोना मेक देम हैप्पी. और वो शायद तुम्हारी 1-2 छोटी मिस्टेक्स हो जिसके लिए तुम्हारे 1-2 मार्क कट सकते थे, वो भी इग्नोर कर दे. अपार्ट फ्रॉम दैट आई जस्ट वांट टू से दिस लाइक वन लास्ट थिंग, लाइक प्रैक्टिकल्स के बारे में. मेरा प्रैक्टिकल्स काफ़ी गंदा गया था. हमारे टीचर ने, लाइक हमारे स्कूल वाले टीचर ने हमें बोला था कि कोई 10 आसन आप प्रिपेयर करके आ जाना तो तुम कर सकते हो. एंड वी हैड डन दैट. हम लोगों ने इतने सारे आसन में से 10 ही याद किए थे. बट द एग्जामिनर रेफर टू ओनली 1 गर्ल्स बुक एंड वो उसी लड़की के बुक से हमें पूछ रहा था. उसने 10 अलग आसन लिखे थे जो हमने अलग लिखे हैं अपने प्रैक्टिकल बुक में. So yeah, one thing, keep your practical book, like you know, make your practical book look attractive. क्योंकि मैं तुम्हें बताती हूँ, जो प्रैक्टिकल के लिए एग्जामिनर आता है, जो ये लोग आते हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने कितना ज़्यादा लिखा है, तुमने कितना सही लिखा है, तुमने क्या किया है. ठीक है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता. उनको बस फ़र्क पड़ता है कि क्या तुम्हारे प्रैक्टिकल नोटबुक में स्केच पेन से तुमने ड्राइंग्स बनाई है कि नहीं, क्या तुमने कलर पेन से टाइटल लिखा है कि नहीं. उन्हें बस इन्हीं चीज़ों के बारे में फ़र्क पड़ता है. अदरवाइज दे लिटरली डू नॉट गिव अ शिट अबाउट एनीथिंग एल्स. जस्ट मेक अ प्रैक्टिकल बुक लुक वेरी नीट. अच्छे से कवर डालो प्लीज़, उस चीज़ में कंजूसी मत करना. दिस इज लाइक 30 मार्क्स. ठीक है, बाकी तुम्हारे सब्जेक्ट में शायद 80 मार्क का होगा तुम्हारा पेपर, बट दिस में यू हैव अ 70 मार्क पेपर, यू हैव 30 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल. सो दीज थिंग्स हैव मार्क्स. और ये तुम्हारे फ्री के मार्क्स है, समझ लो. लिटरली दीज थिंग्स आर योर फ्री के मार्क्स. तुम्हें क्यों चाहिए कि तुम्हारे फ्री के मार्क्स में महंगे पड़ जाए? फिर चाहे तुम्हारा एग्जाम गंदा जाए, शायद उस प्रैक्टिकल को याद ना रहे, बट तुम्हारा नाम उस बुक पे देख के उसको पता चलेगा कि तुमने अच्छे से नोटबुक बनाई है, मार्क्स दे देगा तुम्हें. यूज दैट टू योर एडवांटेज. ठीक है. अदर थिंग इज दैट ना बी अ लिटिल प्रिपेयर फॉर द प्रैक्टिकल. क्योंकि मेरा वो जो इंसान आया था जिसने मेरा प्रैक्टिकल लिया था, ऑनेस्टली मेरा प्रैक्टिकल काफ़ी गंदा गया था. आई एम नॉट एट ऑल एथलेटिक. इट वॉज अ वेरी एम्बैरेसिंग प्रैक्टिकल फॉर मी बिकॉज okay, I don't even want to talk about it. It was a very, very embarrassing practical. He had asked me a very but obvious question जिसका आंसर मैंने बहुत ही ज़्यादा गलत दे दिया था. And if I'm gonna say it out loud, I'm gonna get a lot of hate. ठीक है, तुम मुझे आलिया भट्ट बना दोगे from her 2014 student of the year era. And I really don't want to be that person right now. 13 मिनट की वीडियो ऑलरेडी हो चुकी है. मैं काट के और छोटा बना दूंगी बिकॉज मुझे पता है कि तुम सब लोगों के ना जो अटेंशन स्पैन है वो ख़राब हो चुके हैं. And I want you guys to get all the important information from this video. So yeah,
I hope you like this video and I hope it was super helpful and I'm gonna make sure I come with more helpful videos. अगर तुम्हें कुछ भी पूछना है कमेंट्स में बोल दो. I reply to the comments. ठीक है? This is a community. I'm not a random YouTuber. I'm literally your internet bestie. So you can ask me questions. I'm gonna be there for you whenever you want. And if you want any other videos, any other कुछ भी तुम्हें चाहिए तुम कमेंट कर दो मैं बना दूंगी. I literally got one comment कि बी का वीडियो बना दो मैं बना रही हूँ. And that was it for this video besties. I'm gonna see you in more videos. Love you. Bye bye.